ڈاکٹر وسیم کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انگزائٹی۔ آج کی میری ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں کہ انگزائٹی ہے کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں پچھلے سے 1 سال میں رابطہ کیا، میسیجز آئے، کالز آئیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ انگزائٹی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، اور ان کی وجوہات کی طرف تو ہم بعد میں بات کریں گے، ٹریٹمنٹ کی طرف، لیکن پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہے کیا۔ سوچنا اچھی چیز ہے، ذہن اللہ نے ہمیں دیا ہے، تفکر کرو، تدبر کرو، سوچو، لیکن ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سوچتے رہنا، اور خاص طور پہ منفی چیزوں کے بارے میں بار بار سوچتے رہنا، مستقبل سے ڈرتے رہنا، ماضی کے پچھتاووں کے بارے میں سوچتے رہنا، لوگوں کو معاف نہ کرنا، تو اس وجہ سے یہ انگزائٹی کی بیماری سامنے آ سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مستقبل کے اندیشوں میں پڑا رہتا ہے، ماضی کے پچھتاووں میں پڑا رہتا ہے، حال کو بدحال کر دیتا ہے، خیال اس کے سارے ادھر ادھر ہوئے ہوتے ہیں، کچھ اسے سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی میں کیا کروں، اور مایوس ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان بار بار سوچ کے۔ تو ویسے تو یہ خیالات کے ساتھ جڑی ہوئی بیماری ہے، لیکن انگزائٹی جب بڑھتی ہے، انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ، میرے اندر کچھ مسئلہ ہے، میرے اندر کوئی بیماری ہے، تو پھر زیادہ سوچتے سوچتے یہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ ہارٹ ریٹ، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، سانس پھولنے لگ جائے گا، اسی طرح سے نیند کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند نہیں آئے گی، اسی طرح سے ہارٹ اٹیک کا سوچ کے کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا، تو وہ دل کا درد جو ہے نا بائیں سائڈ پہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اسی طرح سے جلدی تھکاوٹ ہوگی، اور انسان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بالکل ہل کے رہ جاتی ہے، باہر لوگوں سے ملنا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر کہیں کسی جگہ پہ رش ہو تو فوراً وہی سمٹمز جو ہے نا، وہی علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، گھبراہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ زیادہ لوگوں سے گھلنا ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں، یا کہیں آپ ہسپتالوں تک جا پہنچے ہیں، ہسپتال میں آپ نے اپنے سارے ٹیسٹ کرائے اور وہ سارے ٹیسٹ نارمل آئے ہیں، اور آپ پریشان ہیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا کہ ہم کیا کریں، تو یہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ہی ہے کہ یہ جو انگزائٹی ہے اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آج کا انسان غلطیاں کر رہا ہے کہ یہ انگزائٹی تیزی سے پھیل رہی ہے، کہ ابھی ہمیں سٹریس کو بھی مینیج کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، جو کہ جس کو میں ایسے ایکسپلین کروں گا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خیال چونکہ کرپٹ ہو جاتا ہے، خیال آپ کے بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہو، مطلب ورسٹ کیس سینیریو، نہیں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی بات آئے گی تو آپ اس کا خطرناک اینڈ ہی نکالو گے، تو جس کی وجہ سے آپ کے خیال خراب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے حالات بھی بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ قرآن پاک کو ترجمے سے نہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم ترجمے سے پڑھیں تو یہ شفا ہے، اور کیسے شفا ہے؟ اگر ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں بہت ساری نشانیاں ملیں گی، بہت سارے اشارے ملیں گے، جیسے کہ آج کا انسان لیٹ سے کسی کے پیرنٹس کی وفات ہو گئی، یا کسی کو مالی نقصان ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا ضرر پہنچا انسان کو جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور انگزائٹی کا مریض بن گیا، تو اگر ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، یعنی کہ انسان کو ان ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا، لیکن جو میرے بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ یہی بولیں گے کہ ہمارا ان چیزوں سے کیا لینا دینا، ہم تو بس اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آخرت پہ ایمان، ایک ایسی ابدی زندگی پہ ایمان جو کہ آنے والی ہے، اور جس میں یہ دنیاوی جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ نہیں ہوں گی، لیکن ان کے لیے نہیں ہوں گی جو ان دنیاوی پرابلم پہ صبر کریں گے، اور صبر کرتے کرتے اس صبر کو شکر میں بھی کنورٹ جو ہے اس کو کریں گے۔ تو آج کا انسان اللہ سے ناشکری کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، جیسی اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ جتنے اللہ نے احسان کیے ہیں، جتنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، ان کو بھول کے اس ایک پریشانی کا گلہ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ مخلوق کا گلہ خالق سے کرتا ہے، خالق کا گلہ مخلوق سے کرتا ہے، اور یہ عادت اتنی پکی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس بیماری سے نکل نہیں پاتا۔ تو ایک تو ہم نے
जो है इसको तर्जुमे से पढ़ना है और देखना है कि जब अल्लाह ताला हमें पहले ही बता रहा है कि इस टेम्पररी दुनिया में, इस फ़ानी दुनिया में 60-70 साल की जो ज़िंदगी है इसमें परेशानियां आएंगी, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो मुझे याद रखेंगे और मुझे भूलेंगे नहीं। रूहों से एक वादा लिया गया था कि पूछा गया था कि क्या अल्लाह जो है वो हमारा रब है, क्या हम अल्लाह के होने का पे ईमान लाते हैं? तो तमाम रूहों ने वादा लिया था। तो इसीलिए आज का इंसान जब अल्लाह की किताब से दूर होगा, अल्लाह से दूर होगा, तो उसकी रूह बीमार होगी, और रूह को जो है तलब होती है अल्लाह के कलाम की और उन बातों की जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ज़रिए। प्रॉपर एक हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम कायनात का मुताला करें, मुशाहिदा करें, हम देखें कि पूरी आसमान पे आपको कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा। अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो सिर्फ क्रिएशन नहीं है, उसमें परफेक्शन है। और इसी तरह से अगर बाकी सारी कायनात में अल्लाह ने परफेक्शन के ज़रिए इसको बनाया है, तो इंसानों में भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परफेक्शन की उस सतह पे, यानी कि जो इंसानों में जो सबसे परफेक्ट है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और उनकी लाइफ में अगर हम झांकें तो हमें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी से, गरीबी से, परेशानियों से, मुश्किलात से गुजारा गया। और ये एग्जाम्पल हमारे पास इसीलिए है कि जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, अगर उनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुश्किलात से गुजारा तो वो हम सब के लिए एक लेसन है। मैंने लास्ट भी एक वीडियो में एक एग्जांपल दी कि जिनके लिए पूरी कायनात बनाई उनको वालिदैन नहीं दिए, आपको दे दिए, लेकिन अब आप उन्हीं वालिदैन का गिला करते हो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स वैसे हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से 100% जो है ऐसा नहीं रख सकता कि उसकी हर चीज़ उससे मिलेगी। इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन वो सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि जो पेरेंट्स के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, इंसान है वो गलती करता है, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि अपने वालिदैन की आप बाकी एहसान तो छोड़ें, इस एहसान का शुक्रिया आप कैसे अदा करेंगे कि या हक़ कैसे अदा करेंगे कि उन्होंने जो एक कलमा आपको दे दिया है फ्री में। इसके लिए इंसान बड़ी दौड़ लगाता है। तो आपको तो पैदाइशी अकीदा दे दिया, अल्लाह की मोहब्बत दे दी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे दी, तो बाकी तो ये डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हम जो हमारे खूनी रिश्ते हैं उनसे हम कभी भी कता ताल्लुकी नहीं कर सकते। तो आपने अपनी लाइफ में यही चीज़ें देखनी है कि कहीं आपने रिश्ते तो अपने उन करीबी रिश्तों को तो नहीं तोड़ दिया, कहीं उनको तो खफा नहीं कर दिया। किसी इंसान ने अगर आपके साथ बुरा किया है और आप उसको माफ़ ही नहीं कर रहे हो, उसका चेहरा सामने आता है तो आपका दिन ख़राब हो जाता है, आपकी कैफियत बदल जाती है। तो माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह से भी हमने जाके माफ़ी ही मांगनी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि जो तूने किया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह और जो हमने किया उस पर अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी कि जो इंसान करता है, इंसान से गलती होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके उस पर माफ़ी मांगेगा। तो सबको माफ़ करें। और इसके अलावा मैं एक दफ़ा फिर यही बोलूँगा कि हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को सोचना है, अच्छी चीज़ों को सोचना है। जैसे कि ये छोटी सी लाइफ है, ये खैर से गुजर जानी है। परेशानियां भी टेम्पररी हैं, वक्ती हैं, खुशियां भी वक्ती हैं। जितनी बड़ी खुशी होती है उतना ही बड़ा वो गम दे के जाती है। हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो है कहते हैं कि जितनी बेटी प्यारी होगी ना, उसकी रुखसती पे उतना ही दुख होगा। तो यानी कि जो जितनी बड़ी खुशी थी वो उतना ही बड़ा गम बन जाती है। और ये चीज़ें तो लाइफ के साथ चलती रहती हैं। समझदार इंसान इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं करता और लेट गो करता है कि एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, वो आने वाली है। और जन्नत अल्लाह ताला की कुर्बत का नाम है और दोज़ख अल्लाह ताला से दूरी का नाम है। तो उस खालिक ने जो इतने जलवे दिखाए हैं, इतना इनाम किया है हमारे ऊपर, वो दुनिया को देख के हम असली दुनिया भूल जाते हैं, आखिरत भूल जाते हैं। तो अगर ये दुनिया इतनी आंखों को अच्छी नज़र आती है, जो कि महज धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सोचे कि वहाँ पे क्या क्या एहतमाम हुआ होगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपसे जुदा हो गए हैं या कोई आपका करीबी रिश्तेदार या कोई दूर चला गया है, अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया है, तो जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे। और एक एक करके सब ने पार लगना है। और इस दुनिया में ज़्यादा ठहरने की ख्वाहिश भी
इंसान को बहुत परेशान करती है कि फैसला कर लें कि महबूब इस पार है या महबूब उस पार है। आप देखें कि जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह वो सब उस पार है, तो एक एक करके सब ने पार लगना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बड़ा प्यार करता है जिसमें दो क्वालिटीज़ हों, एक जो इखलाक में अच्छा हो और दूसरा जो कसरत से मौत का इंतज़ार करता हो। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ को ख़त्म कर देना है, ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है और मौत का इंतज़ार करना है। तो ये सारी जो मैसेज था आप सबके लिए था कि अगर आपको एंग्जाइटी है तो ये सारी बातें उन पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब आ जाते हैं जो जिस्म को सेट करना है, क्योंकि रूह की बात तो हमने कर ली, अब जिस्म को फिट करने के लिए हमने क्या करना है। एक तो आज का इंसान जो है ना वो बड़ा आराम पसंद हो गया, मुशक्क़त जो है वो करता नहीं है, डाइट का उसको ख्याल नहीं है, डाइट उसकी गलत है। तो आज के इंसान ने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेके आना है। मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा होता हूँ, तो मैंने देखा है कि साइकिल ख़रीद लें, साइकिलिंग से भी आपकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, यानी कि कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी। इसके अलावा आपने जो चीज़ करनी है वो है अपनी डाइट को सेट करना है। डाइट में आपने जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मिलावट ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड है, उनको अपनी डाइट से हटाना है, कुदरती फूड की तरफ वापस आना है। विटामिन डी, मल्टीविटामिन, फ़िश ऑयल, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। विटामिन B12 भी आपकी बड़ी मदद करेगा, ये बेसिक विटामिन्स आप लिया करें। मैग्नीशियम बड़ा हेल्पफुल है, अश्वगंधा जो है वो बड़ा हेल्पफुल है। मतलब ये सारे टोटके हैं जो आपके हेल्प करेंगे उस वक्त जब आप अपनी लाइफ को एक्टिव कर देंगे और साथ साथ अपनी डाइट को भी सेट कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई नई ज़ुबान सीखें, कोई नया काम सीखें, कोई भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी में आप जो है अपने आप को बिज़ी कर दें, अच्छे लोगों की महफ़िल में बैठें, अल्लाह वालों की महफ़िल में बैठें। और अल्लाह वालों की महफ़िल कौन सी होती है, उसकी पहचान क्या है कि जहाँ बैठने से आपको ज़्यादा अल्लाह याद आए, तो वो अल्लाह वालों की महफ़िल है। और आज का इंसान तरक्की करते करते बड़ी कीमती चीज़ें छोड़ गया है पीछे, जिसकी वजह से वो परेशान है। तो दोबारा से हमने अपनी लाइफ को सेट करना है। और एक बात जो मैं बार बार करता हूँ कि ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएं, अता का ज़िम्मेदार वो है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आए, और इंशाअल्लाह जब आप इन बातों पे अमल करके अपनी एंग्जाइटी को ठीक कर लेंगे तो उसके साथ साथ फिर आपने बहुत सारे लोगों को भी गाइड करना है, क्योंकि ये बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।